Apex News, India, Northeast. नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। मेघालय सरकार ने राज्य के कम से कम 2 जिलों में बांग्लादेश से इलीगल तरीके से इंपोर्ट की जा रही मछली की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईस्ट खासी हिल्स और साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिलों में ये बैन लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पोरस बॉर्डर रूट्स के जरिए बिना नियंत्रण मछली के कंसाइनमेंट्स राज्य में दाखिल हो रहे थे। इस फैसले के पीछे पब्लिक हेल्थ और बायोसिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता बताई गई है। ईस्ट खासी हिल्स में इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया है। आदेश के मुताबिक बिना वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स के बांग्लादेश से इलीगली इंपोर्ट की गई मछली का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन पूरे जिला क्षेत्र में सख्ती से निषिद्ध रहेगा। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक फरवरी से फास्टैग सिस्टम को और सरल बना दिया गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार्स, जीप्स और वैन्स के लिए नए फास्टैग इशुएंस पर नो योर व्हीकल यानी KYV प्रोसेस को खत्म करने का फैसला किया है। इस कदम से उन लाखों सड़क उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद फास्टैग एक्टिवेशन के बाद वेरिफिकेशन की वजह से परेशान थे। पहले से जारी कार फास्टैग्स के लिए भी अब रूटीन रूप से KYV अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ उन खास मामलों में KYV की जरूरत पड़ेगी जहां गलत इशुएंस, मिसयूज या लूज फास्टैग जैसे शिकायतें मिलेंगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी शिकायत के एग्जिस्टिंग फास्टैग्स पर KYV वेरिफिकेशन नहीं होगा।
1 फरवरी से सिगरेट्स का दाम बढ़ने वाले हैं। सरकार द्वारा ड्यूटी रेट्स बढ़ाए जाने के बाद फिल्टर सिगरेट्स और लंबी सिगरेट्स पर ज्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने सिगरेट्स के साथ साथ जर्दा, गुटखा और बिना तंबाकू वाले पान मसाले पर भी नए सेस और ड्यूटी रेट्स नोटिफाई किए थे। इसका सीधा असर देश भर में रिटेल प्राइसेस पर पड़ने की संभावना है। Higher prices. So what exactly has changed and how much more will smokers? The centre has notified a new excise-based tax framework for cigarettes, tobacco and pan masala. This replaces the GST compensation cess, which will no longer apply from 1st February 2026. Instead, tobacco products will now be taxed under a fresh excise duty, along with cess within the excise framework. Other existing statutory duties continue unless specifically amended. Importantly, the National Calamity Contingent Duty remains unchanged. Until now, cigarettes have been taxed through multiple layers. There was 28% GST, a compensation cess split into a fixed and an ad valorem component, and NCCD on top of that. The fixed cess ranged from about 2,000 rupees to over 4,000 rupees per 1,000 sticks. The ad valorem cess depended on length and price, reaching 36%. In total, taxes accounted for roughly 50 to 60% of the maximum retail price. Under the new framework, cigarettes will face a uniform GST rate of 40%, a new excise duty ranging from about 2,150 rupees to as high as 8,500 rupees per 1,000 sticks, and NCCD at existing rates. Under the earlier system, the total tax was about 50 to 60% of the MRP. Under the new regime, estimates suggest this could rise to 65 to 80%. Cigarette length has always influenced taxation, but the gap widens under the new system. Longer cigarettes will attract much higher excise duty in absolute terms. Shorter cigarettes may pay less per stick, but the higher GST rate means their percentage tax burden still rises sharply. To put it simply, no category really escapes the pressure, but longer cigarettes take the biggest hit. Now, brokerage estimates suggest the tax per cigarette stick could rise by 20 to 40%. To absorb that, companies may need to raise prices by 18 to 35% depending on the segment. Even shorter cigarettes could see at least a 15% hike. For instance, a 100 rupees cigarette pack with 10 regular sticks could now cost 115 rupees to 125 rupees. That's an increase of 1.5 rupees to 2.5 rupees per stick. How much of this reaches consumers will depend on how much companies pass on and how much demand can take the hit. To stay updated on what this means for your wallet and the broader economy, keep following. यूनियन बजट 2026 में आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाली कई बड़ी घोषणाएं की गई है। सरकार ने जूते, बैटरी और माइक्रोवेव ओवन जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान को सस्ता किया है, जिससे उपभोक्ता को कुछ राहत मिलेगी। वहीं कुछ अन्य चीजों पर बढ़े हुए टैक्स के चलते उनकी कीमतें बढ़ने की आशंका है, जो घर के बजट पर दबाव बना सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएनजी और बायोगैस के दाम घटाने का भी ऐलान किया है। इससे सीएनजी गाड़ी चलाने वाले लाखों लोगों की फ्यूल खर्चे में सीधी बचत होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को भी राहत मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जोरदार जवाब दिया। राहुल गांधी ने एक मैगजीन रेफरेंस का जिक्र करते हुए इसे पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरावने की किताब से जोड़ा था। इस पर अमित शाह ने उनसे हाउस के फ्लोर पर ही एग्जैक्ट सोर्स बताने की चुनौती दी। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तेज सियासती तकरार देखने को मिली। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। दिल्ली की मजनू का टिला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू परिवार जिन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, उन्हें बेदखली का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बेदखली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के अंदर उनकी रिहैबिलिटेशन पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। वही है तो जाए कहाँ। ना चोरी करते हैं, ना नशेड़ी है, ना गंजेड़ी है, ना चोर है, ना चक्के हैं। और सब कह रहे हम तो कर तो रहे, क्या कर रहे हैं। यहाँ की लेडीज है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है डेंगू की वजह से। सरकार को सारा पता है कितने लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अगर ये 10 परिवार पाकिस्तान वापस चले गए, साल भर की कमाई हमारी पल भर में चली जाती है। कचौड़ी बेचते हैं, ज्यादा बड़ा कारोबार नहीं करते। आटा देने, चावल देने से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। जय श्री राम दोस्तों आजादी को हुए 78 साल हो गए। 78 साल में दोस्तों अनगिनत पाकिस्तानी हिंदू परिवार भारत आए और बहुत सारे ऐसे करीब 20 से 30% पाकिस्तानी हिंदू वापस भारत से थक हार कर जाते हैं। वजहों पर दोस्तों हमने बहुत बार डिस्कशन करी है, लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों 3-4 दिन पहले 10 फैमिलियां पाकिस्तान वापस गई हैं। उस फैमिलियों के दोस्तों रिश्तेदार, पड़ोसी कह लीजिए या जानने वाले कह लीजिए, ये यहाँ बैठे हैं। वो परिवार दोस्तों जो वापस गए हैं वो तो गए, लेकिन ऑलमोस्ट दोस्तों 40-50 फैमिलीज मोर are considering going back to Pakistan. Now दोस्तों as a organization we want to stop that because हम नहीं चाहते किसी अभाव के कारण, किसी मदद ना होने के कारण को वापस जाए। Let us start today's video। बारिश थोड़ी हो रही है दोस्तों, बात करते हैं, then we will close it। सबसे बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन दिखाता हूँ। ये हमारे दोस्तों गुलाब जी हैं, गुलाब जी बीमार हैं, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर दोस्तों परेशान है। भारत इज ए दोस्तों पर्सन जो हमारे साथ काम करते हैं, थोड़ी सी सेवा करते हैं लोगों के बीच में। दोस्तों इनसे पूछते हैं, भारत आप बताओ कितनी फैमिलीज और सोच रही है जाने के लिए? लगभग 30-40 फैमिली वापस जाने को सोच रही है। क्या कारण है? कारण यही है कि जैसा हाल वहां पर था ऐसा ही हाल हमारे हिंदुस्तान में ही हो रहा है। जैसे कि मान लो यमुना खादर में रह रहे हैं, हर साल ऊपर बाढ़ पीड़ित की वजह से रोड पे जाना पड़ता है, हर बार झुग्गी बनाना पड़ता है। जो पैसे कमाते हैं वो दोबारा उसमें झुग्गी में लगाना पड़ता है। तो क्या फायदा है यहाँ पर, मतलब रह इसी वजह से परेशान होकर यहाँ से जा रहे, परेशान होकर। ठीक है दोस्तों, 10 फैमिलियां गई हैं। वो 10 फैमिलियां आप बताओ क्यों गई है? उनके में कितने बड़ा परिवार था, ये कुछ समझाओ। उसमें 6 से लेके 8 परिवार में मेंबर थे, जिसमें कमाने वाला एक। तो मान के चलो बीमारी है, अभी बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से यानी कि सब पूरा फैमिली की फैमिली बीमार हो गई। अब कमाने वाला एक, कोई पूछने वाला है नहीं है। यहाँ पे डेंगू मच्छर है, इसकी वजह से 1-2 मौतें भी हुई हैं और कमाने का कोई ऐसा जरिया भी नहीं है, कोई सरकार ऐसी सुविधा भी नहीं दे रही, जानकारी भी नहीं ले रही। मेरे को ये बताओ, जो परिवार वापस गए उनका वहां पर क्या हाल होगा? क्या होगा, जैसे कि पहले हो रहा था वही होगा। यहाँ भी वही है हालात, वहाँ भी वही है, तो जाए कहाँ। वापस में जाना अच्छा लगा तो वो चले गए। अब यहाँ भी दिखते हैं जेलें, वहां भी जेलें। अगर हमारा यही कसूर है तो वो दिक्कतों की वजह से तो जा रहे हैं। यहाँ रेड़ी पटड़ी का काम नहीं चल रहा है, रेड़ी पटड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। बेरोजगार बैठे हैं, बीमारियों की वजह में गिरे हुए हैं। अभी भी 2 यहाँ की लेडीज हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है डेंगू की वजह से। अब यही दिक्कतें चल रही है, अब क्या करें। आप बताओ भैया, जो परिवार वापस गए तो उनका फिर वहां पर कैसा वेलकम होता है? उनको वहां की सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, खासतौर से मुस्लिम समाज की शक की नजर से देखती है? वहाँ पे जैसे यहाँ से गए हैं तो हमारी सोच, हमारी समझ से तो उसी को तो जैसे ये हालात है वहां से बदतर हाल वहां भी होंगे। और अभी यहाँ की तस्तकी देख के इंदौर मैराथन के दौरान 25 साल के रनर आर्यन तोरी, जो हरियाणा के फरीदाबाद से थे, 21 किलोमीटर रेस के अंत के पास अचानक गिर पड़े। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स ने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है।
सर आज हुई मैराथन के दौरान एक धावक को जो है अटैक आया था। एक आज जो इंदौर मैराथन आयोजित की गई थी 4 इवेंट थे, जिसमें एक दुखद घटना हुई है, जिसमें एक जो मैराथन के इवेंट में लगभग 8 से 8:15 बजे के बीच की यह घटना है, जिसमें कि एक लड़का जो कि लगभग उसकी कंप्लीट होने वाली थी मैराथन, लगभग 100-150 मीटर दूर पहुंचने से पहले ही उसको अचानक अटैक आया और गिर पड़ा। ये शिवाजी वाटिका से SBI बैंक के बीच की डिस्टेंस है, वहाँ पर ये रोड पर ये गिर पड़ा। पास में डॉक्टर भी थे, उसमें चूंकि मैराथन में दौड़ रहे थे तो उनके द्वारा CPR दी, उनकी कोशिश की गई, लेकिन हालत नहीं सुधरी। तत्काल एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस उसको लेकर गई, वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचने पर बंगला भवन के आसपास भरी सुरक्षा तैनाती पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बंगाल में कई लोग के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और इसी मुद्दे को उठाने के लिए वो दिल्ली आई है। क्यों क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या की रहा है? आप इधर में रुको, आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया SIR में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा पास प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत, तो हम भी इज्जत के साथ काम लेना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुनते हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जायगा दीजिए, हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। ठीक है, आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब सुबह से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया, इसी के लिए हमको रुक नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस। तो कैरेक्टर है जो जिंदा है, आप सोचो, अगर कोई जिंदा है उसको लिस्ट में डेथ बोल दिया, 150। हमास के नेता इस्माइल हफीजुल्लाह, जो पहले पाकिस्तान बेस्ड पॉलिटिकल ग्रुप के एक इवेंट में शामिल हुए थे, लेबनान में इजरायली ड्रोन स्ट्राइक्स में मारे गए। बताया जा रहा है कि उस वक्त वो हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटिव के साथ सफर कर रहे थे और उनके साथ डॉक्टर भाई इस्माइल हफीजुल्लाह, वो फलस्तीन से तशरीफ लाए हैं, लोकल हमारे साथ। नाराए तकबीर, फलस्तीनियों से रिश्ता किया। बिहार के ससाराम के मंदी बाजार क्षेत्र में एक लाल ट्रॉली बैग के अंदर से एक लड़की का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के साथ साथ लोकल लीड्स को भी खंगाल रही है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी एप्स्टीन केस से जुड़ी ऑडियो और वीडियो मटेरियल से संबंधित दावों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी भी रूप में नाबालिगों का शोषण शामिल पाया गया तो उसकी गहराई से जांच की जाएगी। इस मामले में इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जारी है। Tira a calça que acontece, vai? Tira a calça, falei. Tira a calça. Eu vou te bater mais? Tira a calça. Vai? कोलकाता के गोल पार्क में TMC से जुड़ी एक पिकनिक गैदरिंग के दौरान हिंसा भड़क उठी। पंचानन तला क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर सिविलियंस पर हमला करने का आरोप है। पत्थर और क्रूड एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ब्रेकफास्ट
त्रिपुरा के सिपाही जाला बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी जॉइंट ऑपरेशन के दौरान लगभग 75 करोड़ रुपए की गांजा नष्ट की है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ तेज अभियान का हिस्सा है। आज भी हम लोगों ने एक गांजा डिस्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया है जॉइंटली ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो ये जो सुबह से शुरू हुआ था, सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ये चला। और ये जो एरिया था दुलुंगा एरिया, ये हमारा सोनामुरा पीएस के दायरे में पड़ता है, फॉरेस्ट लैंड में। यहाँ पर टोटल 92 नोस गांजा फील्ड पाया गया था, जिसमें लगभग 5 लाख के आसपास मेच्योर गांजा था। तो वो जो है हमने डिस्ट्रक्शन किया है जला के आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। और उसका जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 75 करोड़ के आसपास हो गए। और इसका जो एरिया था ये तकरीबन 170 एकड़ में फैला हुआ था, ये जो गांजा फील्ड था 92 नोस। और ये जॉइंटली ऑपरेशन किया गया है, जिसमें हिस्सा लिया है सोनामुरा पीएस और हमारा जो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट का जो आर्म पुलिस है वो लोग पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ में हमारा जो बीएसएफ एजेंसी 81 बटालियन बीएसएफ, 49 बटालियन बीएसएफ और इसमें 69 बटालियन बीएसएफ और 43 बटालियन बीएसएफ भी हिस्सा लिया है। साथ ही साथ में हमारा जो टीएसआर बटालियन है, जिसमें 5th बटालियन, 9 बटालियन, 11 बटालियन, 14 बटालियन टीएसआर और जो 14 बटालियन वुमेन टीएसआर, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही साथ में हमारा जो सोनामुरा फॉरेस्ट डिविजन का जो ऑफिसर स्टाफ थे उन लोग भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारा जो ऑल सिस्टर एजेंसी सब मिलके ये डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन में ज्वाइन किया है। और हमारा जो ये गांजा डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन ये केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से सिलीगुड़ी तक चलेगी, जो पटना से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट बिहार के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। संसद में राहुल गांधी के नेशनल सिक्योरिटी पर दिए गए बयान के दौरान कांग्रेस के कुछ सदस्यों को हंसते हुए देखा गया। इस घटना के बाद राजनीतिक बहस और आलोचना तेज हो गई है। There is a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. सर, तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। सर, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं ध्यान डाला। आप लोग हंस रहे हैं। सर, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को असम रेजिमेंट के जवानों के साथ मशहूर गीत बदलू राम के बदन गाते हुए देखा गया। ये मोरल बूस्टिंग पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, तो हमें उसका रस मिलता है।
राज्यसभा एमपी सदानंद मास्टर ने संसद में बताया कि 31 साल पहले उन पर राजनीतिक हिंसा के दौरान हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि इस घटना में उनके दोनों पैर चले गए। साथ ही उन्होंने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। I was a person with strong two legs, but below knee. Nowadays, I am using artificial limbs. Why? Because the democracy. Every time I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM, 31 years ago. Let him speak. If anything is unparliamentary, I will remove it. You please, my dear, let him speak. I was on the way to my home. You can reply to him when your turn comes, sir. Returning from uncle's house after discussing the marriage, which was fixed that time, discussing about the marriage of my sister, I was returning to my home. That time, in a bazaar, an organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. They were shouting about Inqilab Zindabad. They were shouting about democracy. You have every right to answer to it when your turn comes. Now, you are also going to speak in that. Why I show this here is दिल्ली में चलती बस में फोन स्नैचिंग के दौरान ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से आरोपी पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के गारियाबांध में जेल से छूटकर आए 3 लोगों ने गांव वालों पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.